हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मैं इस समय हूँ थिम्पू में, और थिम्पू की इस यात्रा के साथ हम आपको लेके चलते हैं थिम्पू के बेहद ख़ास और ऐतिहासिक स्थान फोक हेरिटेज म्यूज़ियम की सैर पर। तो हम लोग इस समय पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम में। तो हम लोग लेंगे टिकट और एंट्रेंस करेंगे, यानी अंदर जाएंगे म्यूज़ियम के अंदर। ये म्यूज़ियम थिम्पू के दिल में बसा है। हम भूटान की पारंपरिक जीवन शैली, संस्कृत, इतिहास की झलक इसके अंदर देखेंगे। तो हम सभी ने जो है टिकट ले चुके हैं। तो यहाँ की टिकट है 1000 पर पर्सन, और बच्चों के लिए यानी जो 15 ईयर से कम बच्चे हैं उनके लिए जो है 500 है। तो टिकट ले चुके हैं, अब हम लोग इसके अंदर एंटर करेंगे। हम लोग हो चुके हैं इसके संग्रहालय के अंदर। भूटानी संस्कृति रीति रिवाजों के पुराने समय की जीवन शैली को सहित कर रखता है ये म्यूज़ियम। तो अंदर हो चुके हैं और हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वेलकम ड्रिंक। तो पुराने समय में किस तरह जो है यहाँ पर जब लोग कोई अतिथि आता था तो वेलकम करते थे, तो यहाँ का जो है वेलकम करने का तरीका है वाइन देकर। वाइन आपको जो है वेलकम ड्रिंक होता है, दिया जाता है। So whenever we receive any guest here, we have a culture of offering them a home brewed wine as a welcome drink. The wine is known as Ara in our language. Ara is brewed by wheat. So first for your welcome and taste, I'll be serving you just a little. If you like it, let me know, I'll serve you more. Alright, so if you don't imbibe, it's not mandatory. We will serve you tea later inside. For you, we will serve tea later. 야, 가게 준비되네. 넌 주인. 가, 알아보자. Bro, tunggu sebentar. 야, 케미 잘하면 나 봐줘야지. Notice a white scarf like this. The white scarf is known as khadar in our language. If it's placed above, it means they have already passed away. If it's below, it means they are still living. So the last portrait there, it's of the current king of Bhutan, His Majesty Jimmy Khesar Namgyal. He is 45 years old. His father, the fourth king of Bhutan, is still living. He is 69. When he turned 51, he voluntarily abdicated his throne to his son in order to guide him. Again in 1958, to mark the friendship between India and Bhutan, when the first Prime Minister of India तो यह एक जो है 3 मंजिला पारंपरिक भूटानी घर है, जिसे मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से वैसे ही बनाया गया है जैसे पुराने ज़माने के लोग यहाँ पे रहते थे। तो किस तरह जो यहाँ का कल्चर पुराने समय को इसमें दिखाया गया है, किस तरह से यहाँ लोग रहा करते थे। no cement before, we use topsoil or sieved red earth to construct houses here. So first we will set up this temporary frame in the shape of wall. After that we are going to put in some soil, sprinkle water, and with the ramming rod they are going to ramming the earth until it becomes dampened. So while they are ramming, a lot of unseen insects like earthworms, ants are being smashed in together. For that they are going to ask forgiveness by singing song. So meaning of this song is they're just chanting mantra in the form of song and asking forgiveness, just like we perform Bhumi Mata's Puja in India, right? So in Bhutan, while constructing only, they're going to perform this prayer song. They will demonstrate it for us, we will watch them, you can take their picture, your pictures or videos as well. Yeah. Shop, 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 shop. तो भूटानी लोग जो हैं किस तरह घर बनाते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर से बनाया जाता था। और जो आप शेप देख रहे हैं, इसी से जो है दीवार बनाई जाती थी और चैंटिंग करते थे मंत्र के द्वारा। जिस तरह अपने भारत में भूमि पूजन किया जाता है, उस तरह जो है भूटान में ये चैंटिंग की जाती है। जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो 2 से 3 मंजिली इमारत जो है इसी तरह कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, और ये मंत्र का उच्चारण करने के साथ में ही जो है मकान यानी घर बनाए जाते थे।
If you haven't seen this Earth Ranch house before, you can see a building in front of you. This is God of compassion. That one is God of physical. सो ये है फर्टिलिटी गार्डन। सो जिसके अगर बेबी नहीं होता था तो पुराने समय के लोग जो हैं मन्नत मांगते थे और यहाँ पे वाइट जो है कपड़ा बांध कर अपनी मन्नत मांगते थे। A form of cartoon here. Please don't feel shy or offended when I explain you about him. You can see his portrait here. He is the fertility god of Bhutan, known as Chögyü Dukpa Khinle. Chögyü means a highly learned yogi or lama. Dukpa Khinle is just his name. So each and every god that we know of will have different powers, weapons of their own to subdue demons. For this fertility god, he uses his phallus as a weapon to subdue demons here. So that's why this phallus is considered very sacred here in Bhutan. You can see it placed on door, painted on newly built buildings, or we have it placed on four corners of roof that way. So these are to get rid of evil eyes here in Bhutan. Just like in India, we would have lemons and chilies placed on the door or wear kala tika, right? So in Bhutan, we use this shape of phallus as kala tika. Okay. And he also has a temple on the way to Punakha where married couples go and pray for a child. So after praying there, he blesses us with a child. And it is also said that he never disappoints any couple. That's why his temple is very famous even among the foreigners. So every year in Bhutan, Mark's Dance Festival will be performed. During that festival, highly trained monks are going to wear this wooden mask, wear colorful costume and perform the dance for us here. And just next to this mask, you can see musical instruments. We're going to watch folk dance later in the restaurant. For that folk dance, they use this kind of musical instrument, traditional musical instrument. Okay. For now, you can try this instrument, take some pictures, and we will continue ahead while they are performing the dance. You just have to hold it from end, and with the black rubber, tap it like this. It is known as Yangchin in our language. इधर ट्राई करिए। बस और तीसरे को ट्राई करने दो। दे दो। हारमोनियम अलग चीज है ये ऐसे हाँ। किचन स्टोव दिया। This one's a traditional kitchen. You already know about kitchen. You can go through the things inside like that. Rice and all. Take pictures here. That's you can go through the things and take pictures inside. यहाँ से अंदर जा सकते हैं आप. You can also try turning. ये मक्का का वो है Prepare butter. Noodle making machine. हाँ हाँ डू नॉट टच। हाँ हाँ भाई ऐसा है ना पापा बस बस बस। जाएगा तो ये हैं ड्राई कट के फ्रूट्स जो कि इस तरह के लोग जो है यूज़ करते थे। और ये है किचन जो पुराने ज़माने के भूटान
कि जो पुराने ज़माने के लोग जो है यूज़ करते थे। तो ये है ट्रेडिशनल किचन और ये व्यक्ति जो पैरों से विकलांग हैं, लेकिन इनकी चित्रकारी जो है आप देखने को मिलेगी। इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का भी नवाज इनको खिताब मिला हुआ है। बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं ये। और यह है भूटान की सीढ़ी जो पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी। संग्रहालय में खेती बाड़ी औजार और पुराने ज़माने के अनाज भंडार की पद्धतियाँ, और ये देख सकते हैं चक्की, और उस समय किस तरह जो है चक्की से पीसा करते थे। तो बहुत सारी जो है उन पुराने ज़माने में अनाज भंडार पद्धतियों और लोक जीवन से जुड़ी वस्तुएं हमको प्रदर्शित करती हैं। आप ये देख रहे हैं भगवान बुद्धा की स्टैचू के सामने पानी। तो यहाँ पर सिक्के रखे हुए हैं, और जो ये सिक्के बाउल के अंदर 5 सिक्के दिए जाते हैं, और 5 सिक्के अगर बाउल के अंदर चले जाते हैं तो जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो मैंने भी जो है हमको भी कॉइन्स दिए गए, और हमने भी अपनी मन्नत जो भी मन्नत था तो उसको हमने भी कॉइन्स डाले। हमारे 5 में से 4 कॉइन्स उस बाउल के अंदर चले गए थे, और एक जो नहीं गया था। तो सभी ने, मेरे फैमिली मेम्बर ने, सभी ने बारी बारी से कॉइन्स उस पानी में तैरते हुए फ्लोटिंग करते हुए बाउल में डाला। तो सभी ने ट्राई किया। तो वहाँ की मान्यता है कि अगर बाउल में 5 के 5 सिक्के फ्लोटिंग हुए बाउल में चले जाते हैं तो आप बुद्धा आपकी विशेष पूरे करते हैं, और सभी ने जो है ट्राई किया। फिर इसके बाद हम लोग आगे को बढ़ते हैं। तो वहाँ था तीर। तो हम लोग जो है फिर हम लोग पहुँच गए भूटान की पारंपरिक शैली। सो सबसे पहले अतिथि का स्वागत के लिए उस समय जो प्रयोग किया जाता था, फूड सर्विंग किया गया, और इसके बाद वाइन, और फिर इसके बाद कुछ फोक डांस, वहाँ का ट्रेडिशनल डांस का भी हम लोगों ने भरपूर एंजॉय किया, और साथ में बहुत सारा डांस किया। तो यहाँ की पारंपरिक भूटानी पोशाकें, आभूषण और दैनिक वस्तुओं की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने में भी बहुत ही मनमोहक लग रहा था। वाकई में भूटान की शैली तो इस म्यूज़ियम के अंदर जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही खूबसूरत, और वहाँ की जो पारंपरिक शैली का प्रयोग जो भूटान के लोगों ने किया, जो प्रेजेंटेशन किया, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोगों के द्वारा हम लोगों को किया। बहुत ही जो हमारा वेलकम है, वेलकम भी बहुत खूबसूरत तरीके से। और इसके बाद जो है वेलकम के बाद जो है वहाँ का फोक डांस, वहाँ का पारंपरिक डांस जो पुराने ज़माने में किस तरह से अतिथि के साथ में प्रेजेंटेशन करते थे, किस तरह से क्या करते थे, पूरा जो है इस म्यूज़ियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ की पारंपरिक ड्रेस, वहाँ की पोशाक, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का फोक डांस इस म्यूज़ियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पर बने हुए घरों की जो डिज़ाइंस भी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत।
आराम से आराम से। अब इस म्यूज़ियम के अंदर बहुत कुछ था देखने के लिए, रसोई, यहाँ की रसोई, ड्रेस। तो इसके आगे हम तीरंदाजी को भी देखेंगे। तो जो है तीर निशानों पर लगाता था, उसका जो ग्रुप था, डांस यानी फोक डांस जो किया जाता था। तो एक हमारे जो ग्रुप के एक लोगों की जो तीर है निशाने में लगा, और फिर हम लोगों ने वहाँ पर भी फोक डांस का एंजॉय किया। तो बहुत ही यहाँ का प्रेजेंटेशन इस म्यूज़ियम के अंदर, हर एक प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही देखने का बहुत ही मनमोहक था। जिंदगी पर दिखाया गया है किस तरह से वहाँ खेती करते थे, अन्न संरक्षण करते थे, किस तरह त्यौहार मनाते थे, किस तरह यहाँ इस म्यूज़ियम के अंदर 19वीं सदी का जो अनुभव यहाँ देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो गाइस हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप थिम्पू आए हैं, भूटान आए हैं, तो इस म्यूज़ियम को देखना ना भूलें। ना सिर्फ फ़ोटो खींचने की जगह है, बहुत ही खूबसूरत है। भूटान की जो है आप पारंपरिक चीज़ों को देख सकते हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है। भूटान की आत्मा महसूस होती है इस म्यूज़ियम के अंदर। थी हमारी थिम्पू म्यूज़ियम की छोटी सी सैर। सो गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सो फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग।